Provincial Small Cause Code. The following provision shall not extend to the court constituted under the Provincial Small Cause Code Act 1887 or under the Bearer Small Cause Code 1905 or to the courts existing in the exercising the jurisdiction of the small courts under the said act law or the court in any part of India that said act does not extend to exercising a corresponding jurisdiction. That is to say, so as much of the body the court is related to the suit, exception of cognizance of the small court cases, the execution of decree in such suit, the execution of decree against the immovable property, and the following section that it is to say section 9, section 91, 92, 94, 95 authorize order attachment immovable property injunction, appointment receipt of immovable property, and the interlocutory orders to clause E of section 94 and 96 and 112 and 115. ये क्या कह रहा है? प्रोविंशियल स्मॉल कोजेस कोड सेक्शन 7 में ये कह रहा है तो प्रोविजन ऑफ सीपीसी जो है वो कह रहे हैं ये लोग कि ये अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई नहीं होता? दिस डू नॉट अप्लाई टू कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1887 या फिर बेरर स्मॉल कॉज कोर्ट लॉ 1905 में सीपीसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और कोर्ट्स एग्जिस्टिंग स्मॉल कोज जुरिडिक्शन इन एरिया वेयर एक्ट डज नॉट एक्सटेंड, जहां एक्सटेंड ही नहीं होता। इसके एक्सेप्शंस इंक्लूड करते हैं जैसे कि सूट जो कि एक्सेप्टेड फ्रॉम दी जुरिडिक्शन ऑफ स्मॉल कोजेस कोर्ट के हों, वैसे केसेस में इंक्लूड होगा ये। एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, certain specific sections of CPC related to the attachment, injunction or receiverships or interlocutory orders. For example, a small cause court constitute under the provincial small court cause act handles suits अप टू पिक्यूनरी लिमिट्स। मान लीजिए टिपिकली स्मॉल वैल्यू के सिविल सूट्स होते हैं ये, जिसका डिटेल प्रोसीजर प्रोविजन सीपीसी जो है वहां पर अप्लाई नहीं होता इनको उसमें मोस्ट रिस्पेक्ट में, बट इनको एनेबल करता है टू कंडक्ट अ फास्टर सिंपलर ट्रायल्स। बट इसमें इशू ये हो जाता है कि सच एज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मान लो या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, तो तब क्या होगा मान लो उसमें, तो तब वहां पर सीपीसी के प्रोविजन जो है वो लिस्टेड है एज एक्सेप्शन, तो वहां पर सीपीसी अलाउड होती है, मतलब वहां काम कर सकते हैं सीपीसी पे, बट इन एक्सेप्शंस में लिखा है वहां पे सबसेक्शन 8। व्हाई डू आई से सबसेक्शन? Yeah, section 8 presidency small cause code save as provided section 24, 38, 41, 40, 75 clause A, B, C, 76, 77, 77, 78 and by the presidency small cause code act 1882, 1582 and the provision of the body of the court small not extend to any suit proceeding in any court or small cause established in the town of Calcutta, Madras, Bombay, provided the High Court of the judicature at the Fort William, Madras, Bombay, as the case may be, may from time to time by the direct that any of such petition not inconsistent with the expression provision of the presidency small court court and such modification adaptation as may be specified in notification shall extend to the suit or proceeding or any other suit or proceeding in such courts. All rule heretofore made by any of the high courts under section 9 of the presidency small court cause court act 82 1582 shall be deemed to have been validly made. इसका मतलब ये है सेक्शन 8 ये कह रहा है कि जो सीपीसी है ये डज नॉट नॉर्मली एक्सटेंड टू द सूट या ऐसी प्रोसीडिंग पे जो कि स्मॉल कोज कोर्ट में एस्टैब्लिश हो रही हो या प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में हो। एक्सेप्शंस हैं इसमें कुछ एन्यूमरेटेड सेक्शंस पे हैं। High Court of these presidency towns can notify extending the application of CPC provision of modification as needed। जब भी जरूरत होगी तो यहाँ की हाई कोर्ट जो है इन टाउन को बता देंगे। स्मॉल कोज कोर्ट बॉम्बे डील कर रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्मॉल सिटी डिस्प्यूट, तो पार्टी कैन नॉट इन्वोक सीपीसी प्रोविजन एक्सेप्ट विच द हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे विल इन नोटिफिकेशन एक्सटेंड करेगा वो प्रोविजन के इसमें अलाउ करो टेलर्ड प्रोसीजर ताकि इसमें फिट हो पाए। देखो ये चीज समझो कि स्मॉल कॉज कोर्ट जो है वो माइनर सिविल डिस्प्यूट्स के लिए होते हैं, स्पीडी सिंपलर प्रोसीजर के लिए फॉलो किए जाते हैं एंड दैट्स इट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड जस्ट एंड जस्ट लिसन। तो ये समझने की जरूरत है हमें कि जो, तो ये इसका बैकग्राउंड ये है स्मॉल कॉजेस कोड जो है ये माइनर सिविल डिस्प्यूट देखते हैं टिपिकली, जो इन्वॉल्व करते हैं छोटे छोटे पेक्यूनियरी वैल्यूज। इनका काम ये होता है जल्दी के मैटर का निपटाना, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, रेगुलर सिविल कोड के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के बियॉन्ड होते हैं ये स्टैब्लिश करते हैं स्पेशल एक्ट जैसे कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट हो गया या प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट एक्ट हो गया। दिस दे लैक जुरिसडिक्शन ओवर सर्टेन सूट्स। तो ये सिंपल है और यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 1 to 8 जो बेसिक क्रक्स है सीपीसी का वो खत्म होता है। इसके बाद शुरू होगा पार्ट 1 सूट्स इन जनरल एंड देन गो ऑन। सो पार्ट 1 से पहले के जो बेसिक्स हैं सीपीसी के वो हम कवर कर चुके हैं। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन मोर
or we'll meet in the next one.